Good morning all of you. Today we will discuss numerical solution of algebraic equations in engineering mathematics. This is important for SBT examinations and also for different competitions. So now, what is numerical methods? Generally used methods by scientists and engineers are graphical methods and numerical methods. So, graphical method is though simple but results to a low degree of accuracy. आमतौर पर वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा उपयोग की जाने वाली विधियां ग्राफिकल विधियां और संख्यात्मक विधियां हैं, बट ग्राफिकल विधि हालांकि सरल है लेकिन एक्यूरेसी की कम डिग्री देता है, दैट इज लेस डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इसे प्राप्त होता है. But numerical method is derived method but gives more accuracy, या कह सकते हैं कि it is more accurate than graphical methods. That is, यह derived तरीका है लेकिन अधिक सटीकता या अधिक सटीक है. So that's why here we used numerical methods. Now, numerical methods are often of a repetitive nature, that is numerical methods प्रायः repetitive प्रकृति की होती है. Now, numerical methods are also called iteration process or iterative methods because this consists in repeated execution of the same process where at each step the result of the preceding step is used and is repeated till the result is obtained to a desired degree of accuracy. That is, numerical methods को iteration process या iterative methods भी कहते हैं क्योंकि इसमें एक ही प्रक्रिया को बार बार निष्पादित किया जाता है जहां each step पर preceding step के results, that is पूर्ववर्ती step के results का उपयोग किया जाता है और जब तक परिणाम that is desired degree of accuracy प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक दोहराया जाता है. The polynomial fx, that is ax square bx plus c equal to 0 is called an algebraic equation, and if fx contains some other functions such as trigonometric, logarithmic and exponential etc. For example, fx is equal to x sin x minus 1, fx is equal to x ex is equal to cos x, and fx is equal to x log base 10 x minus 1.2. ये मेरा हो गया ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, ये हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन एंड ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन. So in this case, when fx is equal to 0 is called transcendental equation. Now, so the value of x which satisfied fx is equal to 0 is called its roots, and if fa and fb have different signs then the equations fx is equal to 0 has at least one roots between x is equal to a and x is equal to b. So to find the roots of an equation y is equal to fx is equal to 0 is the first step used in numerical methods. Now, in this case, we start with a known approximate solution and in step second apply any of the following methods. That is, एक समीकरण के रूट्स को खोजने के लिए हम एक ज्ञात अनुमानित समाधान के साथ शुरू करते हैं और निम्नलिखित विधियों में से किसी एक को लागू करते हैं. That is, methods are first bisection method, second method of false position, that is regula falsi method, and third is Newton-Raphson's method. So today we discuss bisection methods. So first of all, calculation of roots. That means first of all roots को कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको हम यहाँ पे देखते हैं. Let y is equal to fx, that is for different value of x y have different values. So to find the roots of an equations fx is equal to 0,
here we start with a known approximate solution, that is यहाँ हम एक ज्ञात अनुमानित समाधान के साथ शुरू करते हैं. So for this find a small interval AB between which the roots of the equation lies. That is, let us consider y is equal to fx is equal to 0. So if fa is equal to negative and fb is equal to positive, here taken two nearly opposite values, then the roots of the equation first lies between a and b. जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं कि मान लिया कि मेरा y इक्वल टू एफ एक्स इक्वेशन का ये ग्राफ है, y इक्वल टू एफ एक्स का मेरा ये ग्राफ है. सो अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ एट पॉइंट ए it is negative, that is fa is equal to negative, and at point b it is positive, that is fb is equal to positive. So roots of the equation y is equal to fx must lies between a and b, and here point p represents fx is equal to 0 because on x axis value of y must be 0. fx इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0. हमको रूट्स फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले fx के वैल्यू को क्या करना होगा 0 करना होगा. मीन्स fx इक्वल टू जो इक्वेशन था उसको हम लोग को 0 पुट करना होगा. नाउ लेट अस चेक एट x इक्वल टू 0 f0, दैट मीन्स x इक्वल टू 0 पे f0 का जो वैल्यू आएगा वो मेरे पास -15 आ रहा है, जो कि मेरा निगेटिव वैल्यू है. सिमिलरली एट x इक्वल टू 1, दैट इज f1 क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 5, दैट इज ये आ रहा है -12. दैट मीन्स यहाँ जो वैल्यू आ रहा है -12, ये भी क्या आ रहा है निगेटिव. एंड एट x इक्वल टू 2, f2, दैट इज x का वैल्यू 2 पुट करने पे मेरा जो वैल्यू आता है वो -5. सो यहाँ भी मेरा क्या आ रहा है वैल्यू -5, जो कि निगेटिव है. एंड एट x इक्वल टू 3, f3, दैट मीन्स 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 15, दैट ये जो वैल्यू आ रहा है मेरा वो 6 आ रहा है, दैट इज ये वैल्यू क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है. सो द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस लाइज बिटवीन 2 and 3 because here taken two nearly opposite values, hence the roots of the equations lies between f2, that is 2, and f3, that is कितना 6. means root lies between 2 and 3, that is 2 and 3. Because f2 and f3 have different signs, then the equations fx is equal to 0 has at least one root between x is equal to 2 and x is equal to 3. That means मेरा जो a and b का वैल्यू हो जाएगा वो क्या होगा x is equal to 2 to x is equal to 3, क्योंकि f2 पे मेरा वैल्यू क्या आ रहा है, y का वैल्यू क्या आ रहा है निगेटिव आ रहा है, एंड f is equal to 3 पे y का वैल्यू मेरा क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है. सो रूट्स ऑफ द इक्वेशंस लाइज बिटवीन 2 and 3. इसको हम इस तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ वी हैव डिस्कस्ड बाइसेक्शन मेथड. सो स्टेप्स यूज्ड इन दिस मेथड्स आर जनरली दिस टाइप्स. दैट इज स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, फाइंड द रूट ऑफ एन इक्वेशन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 0. हम लोग पहले रूट को फाइंड करते हैं, जो भी मेरा इक्वेशन है that is y is equal to f is equal to 0 पुट करके. Now
इफ रूट्स लाइज बिटवीन ए एंड बी, अगर मेरा रूट्स ए एंड बी के बीच में लाइट करता है, दैट इज अगर एफ ए का मान मेरा यहाँ पे निगेटिव आता है एंड एफ बी का वैल्यू पॉजिटिव आता है, सो दैट रूट्स लाइज बिटवीन ए एंड बी. नाउ in step third, we have to calculate first approximation to the roots, that is x1 is equal to a plus b by 2. That is in case of bisection method, मेरा पहला approximation जो होगा वो क्या होगा, a plus b by 2. Now in step 4, if f x1 is equal to 0, then x1 is a root of fx is equal to 0. Otherwise the root lies between a and x1 or x1 and b according as fx1 is positive or negative. So then we bisect the interval as before and continue the process until the root is found to desired accuracy. That means if fx is equal to positive, then root lies between a and x1. यहाँ पे अगर मेरा f x1 का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रहा है, देन रूट लाइज बिटवीन a एंड x1. a एंड x1 के बीच में क्यों होगा, क्योंकि मेरा एफ ए का वैल्यू क्या आ रहा था, निगेटिव आ रहा था. एफ ए का वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, निगेटिव है. एंड एफ x1 क्या है, मैंने मान लिया है कि मेरा पॉजिटिव है. दैट्स वाई इन दिस केस रूट लाइज बिटवीन ए एंड x1. देन सेकेंड अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, देन सेकेंड अप्रोक्सीमेशन to the root. Second approximation to the root is x2 equal to क्या हो जाएगा, a plus x1 divided 2. Now if fx2 is equal to negative, यहाँ पे अगर हम fx2 चेक करते हैं तो मान लिया कि मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है. So the root lies between x1 and x2. Root lies between x1 and x2. Since fx1 is equal to क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है एंड fx2 क्या है यहाँ पे निगेटिव है, सो रूट x1 एंड x2 के बीच में लाइज करेगा. यहाँ पर जस्ट इसके पहले वाले वैल्यू को कंसिडर करेंगे. देन दी थर्ड अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, इसको देखते हैं. थर्ड approximation to the root is x3 equal to क्या हो जाएगा, x1 plus x2 divided 2. Since fx1 क्या है यहाँ पे मेरा पॉजिटिव है एंड fx2 क्या है मेरा यहाँ पे निगेटिव है, that's why root lies between x1 and x2. Hence थर्ड अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा, x1 plus x2 divided 2. And so on, continue the process until the root is found to desired accuracy. और ये प्रोसेस मेरा कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि हम फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच जाते. So let us consider a question asked in SBT examinations 2009. So question is, find the real root of the equation x cube plus x minus 1 is equal to 0 by bisection method to third approximation of the root. That is, according to questions यहाँ पे दिया हुआ है up to third approximations only. मीन्स हमको जो वैल्यू फाइंड आउट करना है वो up to third approximation. दैट इज यहाँ पे हमको x3 को क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि मेरा x3 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा. सो सॉल्यूशन पार्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग. सॉल्यूशन पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट fx इज इक्वल टू, जो मेरा इक्वेशन दिया हुआ है उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं
fx is equal to x cube plus x minus 1. So find the roots of an equation fx is equal to 0, जो कि मेरा पहला स्टेप है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, fx is equal to 0 के लिए रूट्स को फाइंड आउट करेंगे। सो लेट अस चेक at x is equal to 0, if 0 is equal to minus 1, x is equal to 1, if 1 is equal to 1, जो कि क्या आया मेरा, पॉजिटिव आया। एंड x is equal to 2, if 2 equal to 9, जो कि क्या है मेरा, पॉजिटिव आया। Hence root lies between 0 and 1. Since here taken two nearly opposite values, and if fa and fb, that is here f0 and f1 have different signs, then the equations fx is equal to 0 has at least one roots between x is equal to 0 and x is equal to 1. So in step 2, let us suppose a is equal to 0 and b is equal to 1, because roots lies between 0 and 1. So that first approximation यहाँ पे क्या हो जाएगा, first approximation, that is x1 is equal to क्या हो जाएगा, a plus b divided 2. यहाँ पे लिख सकते हो कि रूट lies between 0 and 1. Now, so यहाँ से अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 0 plus 1 divided 2, यानी हाफ इज इक्वल टू 0.5. दैट इज x1 का जो मेरा वैल्यू आया वो 0.5 आया। नाउ हम लोग अब चेक करते हैं कि x1 इज इक्वल टू 0.5 पे fx का वैल्यू पॉजिटिव आता है या निगेटिव। दैट इज वी चेक fx1, दैट इज f इज इक्वल टू 0.5, सो दैट मेरा इक्वेशंस क्या है, एक्स क्यू प्लस एक्स माइनस 1। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या होगा, 0.5 का क्यू प्लस 0.5 माइनस 1। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है यहाँ से, माइनस 0.375। दैट मीन्स एफ 0.5 का वैल्यू क्या आया मेरा, यहाँ पे निगेटिव आया। सो हियर रूट लाइज बिटवीन 0.5 एंड 1, बिकॉज एफ 0.5 मेरा क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। और इसके प्रिसीडिंग वाले स्टेप में मेरा देखना होगा कि किस वैल्यू पे मेरा एफ एस का वैल्यू पॉजिटिव आया। दैट मीन्स यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है। सो दैट्स मेरा रूट जो होगा वो 0.5 एंड 1 के बीच में होगा, बिकॉज इन दिस केस टेकन टू नियरली अपोजिट वैल्यू। सो दैट्स नेक्स्ट स्टेप में मेरा जो होगा, दैट मीन्स सेकेंड अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, स्टेप सेकेंड, यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं कि रूट lies between 0.5 and 1. So step थर्ड, that is मेरा सेकेंड अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन दैट इज x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस b डिवाइडेड 2, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 को क्या कंसीडर किया था, b कंसीडर किया था। सो x2 इक्वल टू x1 प्लस b डिवाइडेड 2। x1 का वैल्यू मेरे पास है यहाँ पे 0.5, b का वैल्यू 1 है, डिवाइडेड 2। दैट मीन्स यहाँ से x2 का जो मेरा वैल्यू आ रहा है वो 0.75। नाउ लेट अस चेक इफ x2 इक्वल टू व्हाट, दैट मीन्स इफ x2 का वैल्यू आइदर पॉजिटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, उसको चेक करते हैं। दैट इज f 0.75। मेरा इक्वेशंस क्या है, एक्स क्यू प्लस
x माइनस 1 दैट इज 0.75 का क्यूब प्लस 0.75 माइनस 1। ये जो मेरा वैल्यू आ रहा है 0.1718 दैट इज, ये जो वैल्यू दे रहा है वो क्या आ रहा है, मेरा पॉजिटिव आ रहा है। एंड इसके जस्ट पहले मीन्स जस्ट प्रीसीडिंग टर्म्स में हमको देखना होगा कि किस वैल्यू पे मीन्स x के किस मान पे मेरा f(x) जो आ रहा है वो निगेटिव आ रहा है। सो दैट यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि इसके पहले वाले केस में f 0.5 पे मेरा जो ये वैल्यू दे रहा है वो क्या दे रहा है, निगेटिव दे रहा है। हैंस इन दिस केस रूट लाइज बिटवीन 0.5 एंड 0.75। Hence, root lies between 0.5 and 0.75. So, root lies between 0.75 and 0.5. Since f 0.75 मेरा क्या है, पॉजिटिव, एंड f 0.5 मेरा क्या है, निगेटिव है। दैट इज जस्ट इसके प्रीसीडिंग वाले स्टेप का जो वैल्यू था वो 0.5 पे निगेटिव था। दैट्स वाई रूट्स लाइज बिटवीन 0.75 एंड 0.5। नाउ स्टेप 4। स्टेप 4 में हम लोग थर्ड अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेट करते हैं, मीन्स थर्ड अप्रोक्सीमेशन। सो x3 इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड 2। सिंस रूट्स लाइज बिटवीन x1 एंड x2, 0.75 मेरा क्या था, x2 था, एंड 0.5 क्या था, x1 था। सो यहां से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे 0.5 प्लस 0.75 डिवाइडेड 2, दैट मीन्स 0.625। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमको केवल फाइंड करना था अप टू थर्ड अप्रोक्सीमेशन, दैट इज x3 का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना था। सो दैट x3 इक्वल टू क्या हो गया, 0.625। ये मेरा आंसर हो गया। सो अप्रोक्सीमेशन रूट ऑफ द इक्वेशन x³ प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0 इज कितना हो गया, 0.625। ये हो गया मेरा, इट इज अप्रोक्सीमेशन रूट। approximation root. So friends, thank you so much for watching this video. In next lecture, I will discuss another examples based on bisection methods. Thank you.